हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 11 सोशल साइंस का, यानी सोशल साइंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी। यानी देखा जाए तो जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ रहे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पे जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चर्चा करने से पहले जो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, natural vegetation and wildlife. There is a natural vegetation and wildlife. In our ecosystem, vegetation and wildlife are valuable resources. We all know that plants and provide us with the timber, give us shelter to man and animals, produce the oxygen we are breathing, prevent us erosion and natural calamities such as the flood, high-speed winds, and help in a strong of underground water. Give us a fruits, nut, latex, turpentine, and oil, gum, medicinal plant, and also the paper that is sustainable for our studies. These are some of the innumerable uses of plants. Wildlife includes animal, birds, insect, reptile, and well as aquatic life form. They provide us a milk, meat, hairs, and wool. Insect like a bee provide as a honey, help in a pollination of flowers, and have an important role to play or decomposer in the ecosystem. The birds feeds on insect and act as a decompose as well. Vulture due to the ability of feed on the dead livestock is a scavengers and considered as a vital cleaners of the environment. There is the most important vulture. The vulture is the beetle is a cleanser of environment, but there is there dangerous here. So life is a form, big or small, all the integrate to the maintenance of balance in the ecosystem. The next year, natural vegetation in India. As in any another part of the world, natural vegetation of India is also determined by the climate, of physiographics and soil factor. If we look at the figure, we find that is based on factor of temperature, rainfall, and topographical condition. India has a diverse vegetation patterns as summarized below. The dense natural vegetation found in the northeastern region and Western Ghat, Andaman Nicobar also. The northern plain and northern western region support a very scanty vegetation and is under cultivation. The Deccan region is full of scraps and mixed or discussion forest. Natural vegetation of India can be broadly divided into the following groups. The first is tropical evergreen forest, tropical discussion forest, and thorn forest, tidal forest, and Himalayan forest. There is a 5 types has divided here. The first of here
Tropical evergreen forest. That's important. Tropical evergreen forest. This is the most important for the exam view. Tree is this forest remain green all the year round as the climate of regions in the warm. And we are throughout the year. The leaves of these trees do not be fall in any particular season. Here they are evergreen. There is a evergreen. The leaves of these trees do not fall in any particular season. These do not fall down. There is a evergreen. And these forests are found in the area having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. There is a 200 centimeter of rainfall with a short dry season. The trees reach a height up to the 60 meter or even more. The height up to the 60 meter or even more. It has a dense and mixed vegetation, all kind of including trees, shrubs, clambers, creepers, epiphytes, and the ferns, given it is the multi-layered structure. This is important. It has a dense and mixed vegetation of all kind, including tree, shrub, clamber, creepers. There's a more on. And here there is a economical exploitation is not available. The number of species tree is very large in a small area. The rosewood, ebonies, mahogany, rubber, jackboots, and bamboo are the important species of tree found in the tropical evergreen forest. There is the most important here. The rosewood, ebonies, mahogany, rubbers, jackboots, and bamboo are important species of trees found in the tropical evergreen forest. In India, this type of vegetation found in the area of heavy rainfall in a western Ghat, upper part of Assam, and island of the Lakshadweep, Andaman and Nicobar. There is the most important area here. And the hardwoods from this forest is used for the furniture, handicraft, etc. They prevent a landslide and soil erosion. There is a most important topic here. The next year, topical discussion forest. There's a most important here. Tropical discusses forest here. Trees, this forest, shaded there is a leaves once in the year. Shaded, there are leaves once in a year. And that's why that is called topical discussion forest. And these are most best period forest of India. These forests are found in the area receiving annual rainfall between 75 to 200 centimeter. 75 to 200 centimeter. As far as the physical distribution of these types of forest is concerned, they are found in the entire country and excluding some part of Deccan Plateau. Northeastern region and Western Ghat and Eastern Coast, this forest has been to the subject to extensive clearness by their man for the purpose of cultivation. Still some patches of natural vegetation are found along the foot hills of Himalaya, hill region of peninsula and central part of the country. On the basis of the ability of rainfall, these forests are further divided into the moisture discusses and dry discussion. There is the most important here, topical discusses forest here. And first of all here, the moisture discusses forest. Moisture discusses forest are found in the area of rainfall between 100 to 200 centimeter. Rainfall between 100 to 200 centimeter. And these are distributed mainly in the eastern part of the country. Northern eastern state along the foothills of Himalayas, Jharkhand, Orissa and Chhattisgarh and eastern slope of Western Ghat. Thick bamboos, sal, silesium and boots and khair, kusum, Arjun, Mahalau, Jano, and there is a mulberry are the important species of tree found in this forest. There is the most important here. And next year, the dry discussion forest.
The dry deciduous forest here are thus separated in their area, receive annual rainfall between 75 to 100 centimeter annually. There is only 75 to 100 centimeter annually rainfall here. And these forests are found in the entire part of the Peninsula Plateaus and plain of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar. Tree species of this forest are teak, sal, peepal and neem. This is important. The next here, Thorns forest. Thorns forest here, the area with a less than 75 centimeter of annual rainfall. There is a less than 75 centimeter annual rainfall. Are characterized by the natural vegetation of thorn trees and bushes. Climate of this part is mainly dry, with occasionally is a wet periods. So it does not support dense vegetation. They are mainly found in north-western India, interior part of the peninsular India including semi-arid area of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, Karnataka and Andhra Pradesh and Maharashtra. Vegetation of this forest is widely distributed in the form of small trees and bushes with the deep roots. The stems are assailant of the conserve of water. Leaves are mostly thick and small, minimize evaporation. Acacia and Ebrophias and Babul, cactus and Care, jet and plums are common variety of tree in these types of vegetation. There is the most important here that Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh even found these types, and there is a mainly babul, cactus, khair, dates and plums. This is the most important tree found in this area. So here comes the most important map on your screen. There's the most important for the exam view. There is examiner goes to the many types of question on this map regarding. There's the most important map for the exam view for the all class here. There are Indian natural vegetation. The natural vegetation here, first of all here, tidal forest. Tidal forest is the found is only for sea area. There is a sea area on your screen there show here. But tropical evergreen forest is a show on there Arunachal Pradesh side, Bengal, Kerala and there's on side. And tropical discussion forest found to the almost all over India. There is Uttar Pradesh, Maharashtra, there is the Bihar, Bengals. That's the most important here. And thorns forest is found. There is only here important side. There is a Gujarat, the Rajasthan. There's a main area is found here. And there is a Himalaya vegetation. Himalaya vegetation, the name is Himalaya vegetation. The found in the Himalaya area here. On your screen, there is Himalaya side. There is a found a vegetation of Himalayan vegetation. There is the most important map on your screen. The next topic is the most important here, tidal forest. The tidal forest is the most important. As suggested by the name, these forests are found in the tidal creeks and snaps influenced by their tidals and wetland topographs. It's important. There is a name is here show and this forest found the suggests here a tidal. Tidal is a wetland, the topography. And this area is created by their mud, slate and water accumulated on their surface. The root and branches of these trees are submerged under their water specific period of time. This is important. The root and branches of these trees are submerged under the water for a specific period of time. They are also called mangrove forest. There is also called here mangrove forest. I repeat again, the tidal forest is also called mangrove forest. The mangroves are particularly evergreen with the thick leathery leaves. Such types of forests are found in the deltas of Sundarban. Deltas of Sundarban, Mahan, Mahanadis and Godavari, Krishna, Kaveri rivers and in the Andaman Nicobar Island also. Mangrove Sundari there is a common tree in the Sundarban. The mangroves or sundaris is the common tree in the Sundarban, while the plum, coconut, keora and agar are the other important species of tidal forest. It is interesting
To now that is the types of forests have remained away from the large scale of commercially exploitation. And these forests are located along the coasts. They provide to protection against the cyclone. You know that, I repeat again, they provide a protection against cyclone. There is a most important tidal forest. Yeah, there is called a mangrove forest. The next year, Himalayan forest. That's the most important Himalayan forest. As evidenced by the name that these forests are mainly found in the mountainous region of the Himalaya. I already show in a map. There's the most important here. The evidence as a name, there are forests are mainly found here, mountains region of Himalaya, and this decrease in the temperature and increasing altitude lead to variety types of vegetation. And depending upon two factors like a slope of the mountain and sun rays receive a side. The ecosystem is highly fragile. As a Himalayan forest have been exploited in a many ways in the recent decades. The area with the relative low altitudes up to the 100 meters and warm climate and good amount of rainfall are characterized by the dense vegetation cover. And this area look like a tropical forest. Sal and bamboo are the main species in this area. You know that there's an important notable point here. The area look like a tropical forest. Is the sal and bamboo are the main species in this area. Between the evolution of the 1,000 to 2,000 meter, evergreen bodied leaves, oka and is the chestnut are the common species found in this forest. In eastern Himalaya, the same evolution is occupied by the subtropical pine forest. Chin is a common species found in this part. Most temperate forests in the Himalayas are found between to the evolutions 1,500 to 3,500 meter, which receive annual rainfall in the range of 100 to 250 centimeter. There is a rainfall is annually. There is a range of 100 to 250 centimeter. And the hair, ochre, ladin, chestnut, cedar, and silver fir spruce and rhododendrons and the deodar are the main species. The deodar is the main species found in this part of Himalaya. They has been to the widely exploited from their timber. Alpine forest found in the Himalaya at the height of between 3,000 to 800 meters with a large and extensive is a highland as a grassland and prairies is a distributed is a pine, birch, silver, fir and rhododendron trees. They are important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी क्या महत्वता है और क्यों जरूरी है। हमारे परितंत्र में वनस्पति और वन्य जीवन मूल्यवान संसाधन है मूल्यवान संसाधन, लेकिन आज का आधुनिक युग में मानव नहीं समझ पाए हैं कि ये बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। हम सभी जानते हैं कि पौधे हमें लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, पौधे हमें लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, मानव और जानवरों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन कर देते हैं जो हमारी सांस लेने में काफ़ी मदद करती है। अगर पेड़ पौधे नहीं तो हम सांस कहाँ से ले सकते हैं, संभव ही नहीं है। मिट्टी का कटाव रोकना प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तेज पवनें रोके और भूमिगत पानी के भंडार में मदद करने के लिए हमें फल देना, गरीदार फल, तरपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज भी हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक होते हैं। तो पेड़ पौधों की इतनी महत्ता है जिसका वर्णन शायद करना यहाँ पर कम पड़ जाएगा। इन कुछ पौधों का असंख्य उपयोग होता है और वन्य जीवन के अंतर्गत पशु, पक्षी, कीड़े स्वरूप के रूप में जलीय जीवन शामिल है। वे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इवन के जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब देख लीजिए मक्खियों हमें फूलों के परागण की सहायता हमें शहद प्रदान करती हैं। मक्खियाँ जो होती है मधुमक्खी तो आपको पता ही होगा, ये मक्खियाँ जो होती हैं मधुमक्खियाँ हमें फूलों के परागण की सहायता से शहद प्रदान करती हैं
और पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन के रूप में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पक्षियों का भोजन कीड़े हैं और अपघटन के रूप में अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। अपने मृत पशुओं का भोजन करने की क्षमता के कारण गिद्ध एक बेहतर और वातावरण की एक महत्वपूर्ण सफाई करने वाला माना जाता है। अब सोचिए, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि गिद्ध जो है एक महत्वपूर्ण सफाई करने वाला माना जाता है, लेकिन आज इंसानों के गतिविधियों के कारण आपको कहीं गिद्ध नज़र नहीं आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कारण क्या है? इंसानों के बदलता रवैया। इंसानों ने जो आज आधुनिकता के आड़ में जो है सब कुछ नष्ट कर दिया है, इस कारण गिद्ध भी आज विलुप्त हो गया है। हम भी देखते थे, जब हम बच्चे थे, कहीं भी कोई जीव जंतु मरता था, लाखों करोड़ों में जो गिद्ध आते थे और चंद सेकेंडों में जो है किसी जानवर को जो है हड्डी सिर्फ छोड़ जाते थे। लेकिन आज के समय देखिए, कोई जीव जंतु मर जाता है तो रोडों के किनारे फेंका हुआ होता है, जंगलों में फेंका हुआ होता है, सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, लेकिन एक भी गिद्ध नज़र नहीं आ रहा होता है। आखिर ये गिद्ध का नष्ट होने का कारण कौन है? क्या सरकार का बढ़ता हुआ लालच या आम इंसानों की गलती? किसकी गलती है जिसके कारण गिद्ध जो है विलुप्त हो चुका है? शायद कहीं आपको चिड़ियाघर में कहीं नज़र आ जाए तो बड़ी बात है। थोड़ा सा देखा जाए तो राजस्थान के साइड भी गिद्ध नज़र आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट आज जो पहले के समय में हर जगह पर नज़र आती थी, आज शायद नहीं आती है, क्योंकि कहा जाता है कि गिद्ध का जो है 100 योजन का नज़र होता है, वो 100 योजन दूर तक भी देख सकता है। इसलिए कहीं जीव जंतु मरता था, बहुत ही आसानी से वो देख लेता था और उसकी भक्षण करके पर्यावरण को जो है साफ सुथरा और हमारे लिए स्वच्छ बना के चला जाता था। लेकिन आज गिद्ध जो है विलुप्त होने के कगार पे आ चुका है और विलुप्त भी हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तो सिर्फ ये चिड़ियाघर में ही नज़र आते हैं, बाकी बाहर तो ये नज़र आते ही नहीं है। सोचिए, विचार कीजिए, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम ऐसे बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधे से हाथ धो देंगे जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था। इवन कि आपको पता है कि चंदन की लकड़ी कितनी महत्वपूर्ण थी और आज के समय में वो भी विलुप्त होने के कगार पे आ चुका है, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इस पर फिल्म जो बनाई गई वो मिलेनियम कमा लिया। चंदन के तस्करी वाला फिल्म तो आपने देखा ही होगा, जिसका एक्शन भी आप लोगों को हर समय याद रहता है। उसने तो पूरा करोड़ रुपया कमा लिया, लेकिन सरकार का आंख नहीं खोला कि ये चंदन अब हमें विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं, क्योंकि लोगों ने इसको इतने बेदर्दी से काटा है कि पेड़ पौधे भी कर्रा उठे हैं कि इतनी तो कभी हमने देखा ही नहीं लोगों की लालच, जितनी लालच आज दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी फिल्म में देखे होंगे, हंसे होंगे और पुष्पा का नाम लिए होंगे, लेकिन आपने इस गंभीर मुद्दे को नहीं समझा कि आखिर इसमें चंदन की बातों पर इतना जोर क्यों दिया गया, और लोग इसी तरह से जो है चंदन को विलुप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आपने तो सिर्फ फिल्म का मज़ा उठाया, वास्तविकता को आपने कभी नज़र नहीं दिया। सभी जीव छोटे या बड़े पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब यदि हम पहले पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति, तो यहाँ पर हम वनस्पति के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये वनस्पति बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और संक्षिप्त भी है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके एग्ज़ाम के लिए अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि 9th में भी ये क्वेश्चन कई जगहों पर पूछा जाता है CBSE वाले बुकों में। तो ये काफ़ी 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो वो नोट कर ले और कौन कौन से उसको अच्छे से याद कर ले तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। आगे देखते हैं हम इसके टॉपिक के रिगार्डिंग। देखा जाए तो संसार के किसी अन्य भागों में के रूप में भारत की प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण भी जलवायु, भौगोलिक और मिट्टी कारकों द्वारा ही होता है। ये तो आपको भी पता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति और निर्धारण भी जलवायु और भौगोलिक और मिट्टी कारकों द्वारा ही संभव है। तापमान, वर्षा और स्तरीकृति परिस्थितियों के कारण और कारकों के आधार पर भारत की विविध वनस्पतियाँ के वितरण नीचे संक्षिप्त में वर्णित है। घने प्राकृतिक वनस्पति उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में पाया जाता है।
उत्तरी मैदान और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम वनस्पतियां हैं और अधिकांश क्षेत्र पर खेती की जाती है। दक्कन क्षेत्र में पूर्ण रूप से कांटेदार झाड़ियां और पनपती जंगल से भी भरा हुआ होता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति छोटे मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें इसको प्राकृतिक वनस्पति को 205 भागों में बांटा गया है। पहला यही आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पनपती वन, उसके बाद कटीले वन, ज्वारीय वन और उसके पश्चात हिमालय वन। कहते जंगल भी मानवकृत होते हैं। यह शहरी क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है। हालांकि इस पाठ में केवल प्राकृतिक वनों को ही प्राकृतिक के रूप में चर्चा की गई है। यानी देखा जाए तो हम सिर्फ प्राकृतिक के ही विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम मानव द्वारा भी निर्मित होती सकती है, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को निर्धारित करना है जो प्राकृतिक ने स्वयं बनाए हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारे समक्ष यही आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वन क्षेत्र में पूरे साल नम और गर्म जलवायु के कारण पेड़ हरे बने रहते हैं। यानी यहाँ पर जो है पौधों को विकास के लिए वो सारे जलवायु मिल जाते हैं, जो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इन पौधों की पत्तियाँ किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ों की पत्तियाँ जो है किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती। जैसे हमारे देखा जाए भारत के कई क्षेत्रों में, ठीक है, अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में देखोगे तो जैसे ही पतझड़ आती है सारे पत्ते गिर जाते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्रों में कहते हैं साल में किसी भी समय जो है मौसम में पत्तियां नहीं गिरती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। इसलिए ये सदाबहार वन कहलाते हैं। और यह वन एक छोटी शुष्क ऋतु के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है 200 से ऊपर रहती है और पेड़ जो है 60 मीटर या अधिक ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। यानी यहाँ की साइड के पेड़ देखोगे तो 60 मीटर से भी ऊंचे होते हैं। इन घने वनों में सभी प्रकार के मिश्रित वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यानी हर प्रकार के वनस्पतियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत पेड़, झाड़ियाँ, लताएँ, ज़मीन पर फैलने वाले पौधे और फल जैसे बहुपरतीय संरचना वाले होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन वनों को अधिक आर्थिक उपयोग स्वीकार नहीं है। यानी इन वनों का आर्थिक उपयोग स्वीकार्य नहीं है। पेड़ों और प्रजातियों की संख्या छोटे क्षेत्रों में बहुत बड़ी होती है। यानी देखा जाए तो ये बहुत कम छोटे क्षेत्र में बहुत सी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। सुगंधित लकड़ियाँ, अबनूस, मेहगानी, रबर, जैक लकड़ी, बांस आदि इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो उष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। भारत में देखा जाए इस प्रकार के वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्सों में। इन जंगलों की लकड़ी फर्नीचर, हस्तकला आदि में प्रयोग किए जाते हैं और भूसंकलन और भू संरक्षण रोकने के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी होते हैं। उसके पश्चात है उष्णकटिबंधीय पनपती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पनपती वन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन वनों के पेड़ अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं। यानी इन वनों के पेड़ पौधे जो होते हैं साल में एक बार जरूर गिरा देते हैं। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय पनपती वन कहा जाता है, क्योंकि ये पनप रही होती है। ये वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए हैं और यह वन 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में बहुत आसानी से ये पाए जा सकते हैं। और यहाँ तक इस प्रकार वनों की जो भौतिक वितरण का संबंध है वह दक्कन के पठार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में ये पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पनपती वन जो है मैक्सिमम क्षेत्रों में पाया जाता है, जो हम मैप के अध्ययन करके भी देख सकते हैं। इन वनों को खेतों के उद्देश्य के लिए मानव द्वारा व्यापक तौर पर उपयोग में लाया गया है। फिर भी प्राकृतिक वनस्पति कुछ क्षेत्र हिमालय की तटहती, प्रायद्वीपीय पठार और देश के मध्यवर्ती भागों के पर्वतीय क्षेत्र के साथ पाए जाते हैं और वर्षा की उपलब्धता के आधार पर इन वनों की आर्द्र और पनपती और शुष्क पनपती में विभाजित किया जाता है। यानी आर्द्र पनपती और शुष्क पनपती विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं आर्द्र पनपती और शुष्क पनपती क्या होता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है
अर्धपनप्ती वन, देखिए अर्धपनप्ती वन का मतलब होता है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में ये बेखूबी पाए जाते हैं। देश के पूर्वी भाग, हिमालय के तटवर्ती झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों के साथ जो पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्य रूप में ये पाए जाते हैं। और सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, महुआ, जामुन और शहतूत इन वनों के काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अर्धपनप्ती वन जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में बरसात करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करें हम शुष्क पनप्ती वन, जो कि 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वन प्रायद्वीप पठार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र के आंतरिक भागों में पाया जाता है। और इस वनस्पति के पेड़ सलगोन, साल, पीपल और नीम किस्म की प्रजातियां हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके पश्चात आता है कटीले वन। देखिए कटीले वन जो है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो देखा जाए बरसात की मात्रा बहुत ही कम होता है। अब देखिए जहाँ पर रेन कम होता है, नाम से भी आपको जगह का समझ में आ गया होगा कि सबसे कम वर्षा किन क्षेत्रों में होता है, तो वही क्षेत्र जो है कटीले वन के रूप में जाने जाएंगे। इसके जो है विशेषताएँ जो है कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ ही पाई जाती है। इस भाग की जलवायु जो है मुख्य रूप से घने वनस्पति का समर्थन नहीं करती है, यानी घने वनस्पति यहाँ पर नहीं मिलते हैं। दूर दराज में इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे नज़र आते हैं। वो जो है मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अर्धशुष्क क्षेत्रों में सहित पूर्वी भारत के आंतरिक भागों में ये पाया जाता है। इस वनों की वनस्पति व्यापक रूप से छोटे पेड़ों और झाड़ियों के रूप में गहरी जड़ों के साथ पाया जाता है। इन वनों की जड़ें जो है जल संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इनके जड़ें जो होती है बहुत काफ़ी डीप चली जाती है। कारण क्या होता है, इन क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी होती है और जड़ें जो है बहुत नीचे जाके पानी अब्जॉर्ब करती है, और जिसके कारण जो है वो अपना जीवन बनाए रखती है। इवन की जो पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ जो है कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या होता है कि कांटे के रूप में परिवर्तन इसलिए होता है कि इससे पानी का जो है वाष्पीकरण कम हो सके। इसलिए देखा गया है कि कैक्टस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा इस क्षेत्र में मिलता है। इसमें सिर्फ कांटे होते हैं और ये जो है क्लोरोफिल जो अपना भोजन बनाती है वो अपने पाठों से बनाती है। और देखा जाए तो अकालिया, बबूल, कैकटिया, खैर, खजूर, तार प्रकार के पेड़ सामान्य रूप से इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं मैप, और मैप के अध्ययन से जानने की कोशिश करें कि किन क्षेत्रों में कौन सा वनस्पति जो है अपना चरम स्थान रखता है। तो चलिए मैप का अध्ययन करें। यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैप है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत प्राकृतिक वनस्पति को जहाँ दर्शाया गया है कि भारत में कौन कौन से वनस्पति पाया जाता है। अब ज्वारीय वन देखिए, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन देखिए, उष्णकटिबंधीय पनप्ती वन देखिए, कांटेदार वन देखिए, हिमालय वनस्पति यहाँ देखिए। अगर हम बात करें ज्वारीय वन, तो ज्वारीय वन आप देख सकते हो स्क्रीन में किसी किसी क्षेत्र में ही पाया गया है, बहुत ही कम क्षेत्र में जो है ज्वारीय वन। और ज्वारीय वन जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है समुद्र के किनारे हैं, और इवन कि मानचित्र में भी आपको दिख रहा होगा कि समुद्र के किनारे ही ज्वारीय वन है, जहाँ पर सदैव ही जो है ज्वार भाटा आता ही रहता है। और देखा जाए तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं मैक्सिमम टाइम पानी के अंदर ही होते हैं। यहाँ इवन की जड़ तो होती तना भी जो है पानियों में ही मिलती है, और ये पानी के क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जैसे मैप में भी दिख रहा है। अगर हम सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन की बात करें तो ये आप देख सकते हो केरला के साइड जो है महाराष्ट्र तक फैली हुई है, या कन्याकुमारी नीचे तक फैला हुआ है। इवन कि अगर हम देखा दूसरे क्षेत्रों में देखें, बंगाल की साइड देखें तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। उसके पश्चात हम देखें तो उष्णकटिबंधीय पनप्ती वन है, और उष्णकटिबंधीय पनप्ती वन पूरे भारत में अपना दबदबा बना रखा है, जैसे कि मानचित्र में भी आप देख सकती हो। आप देख सकते हो कि हर एक क्षेत्र में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए इतना तकल्लुफ़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हो कि भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों में जो है आपका उष्णकटिबंधीय पनप्ती वन ही नज़र आ रहा है। और एग्जामिनर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। ये जो आप देख रहे हो मानचित्र, इस मानचित्र दर्शाने वाले क्वेश्चन भी वहाँ पर होते हैं, तो ये मानचित्र को आपको अच्छे से अध्ययन करना है। अगर देखिए कटक वन देखिए, कटक वन कहाँ है, अब जनरल कांटेदार वन कहाँ पाया जाएगा,
राजस्थान के साइड ही पाया जाएगा, गुजरात के साइड ही पाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर सेंटर में भी पाया गया, इवन महाराष्ट्र के क्षेत्र भी कुछ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है कटीले वन है। इन क्षेत्रों में कटीले वन इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इनको जो है सारे पौधे जो होते हैं कांटे के रूप में इनके पत्ते कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है कि वो जो है वहाँ पर वर्षा उत्सर्जन को बचाया जा सके, यानी जब धूप पड़ती है तो इनके पौधों में पानी का हर्ष ना हो। अगर पानी का हर्ष होगा तो ये पौधे बहुत आसानी से जो है सूख जाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी की बहुत अभाव होती है और इनके जड़ें भी जो होती है बहुत काफ़ी डीप चली जाती है। अगर हम हिमालय वनस्पति की बात करें तो आप देख सकते हो हिमालय जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि हिमालय क्षेत्र में ही नज़र आएगा और हिमालय क्षेत्र में ही नज़र आ रहा है। तो ये एग्ज़ाम में आपको दर्शाने के लिए इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मानचित्र समझ लेते हो तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन से जो है पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकती हो। तो मैप आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा विश्वास है और ये शायद आप भूलोगे भी नहीं। चलिए आगे टॉपिक हम बढ़ाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ज्वारीय वन। जैसे नाम से ही आपको पता है कि ज्वारीय क्षेत्र में होता है। कहते हैं नाम से ही साफ है कि ये वन ज्वार और आर्द्रभूमि असरकृति जो है प्रभावित दलदली जार खाड़िया में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र की विशेषता है मिट्टी गाढ़, यानी मिट्टी की गाढ़ होती है, कीचड़ होती है और पानी धरातल पर जमे हुए सदैव रहते हैं। जड़ें और पेड़ की शाखाएं विशिष्ट अवधि के लिए जो है जलमग्न रहता है, यानी ये पेड़ पानी में ही डूबा हुआ रहता है। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जा सकता है। मैंग्रोव वन के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी आपको ज्वारीय वन आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंग्रोव वन के नाम से भी इसको जानते हैं हम। मैंग्रोव व्यावहारिक रूप से मोटी पत्तियों और साथ सदाबहार वन रहते हैं। वनों की इस प्रकार को हम सुंदर वन भी कहते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष जो है सुंदर वन में अधिकांश पाए जाते हैं, यानी मैंग्रोव और सुंदरी जो है वृक्ष इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि तार, नारियल, केवड़ा और अगर अन्य जो है महत्वपूर्ण ज्वारीय वनों की प्रजातियां भी नज़र आती है। और यह दिलचस्प है कि इस प्रकार वन बड़े पैमानों पर वज्र के दोहन से दूर पाए जाते हैं, यानी इसका जो है हम उपयोग कम से कम ही कर पाते हैं, क्योंकि ये वने जो है अभी भी संरक्षित ही है, क्योंकि वहाँ से जो है बहुत काफ़ी जो है व्यापार करना मुश्किल पड़ जाता है। और यह वन तटों के सहारे स्थित है और ये चक्रवात के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जो चक्रवात से इंसान लड़ नहीं सकता, उससे जो है पेड़ पौधे बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं और इंसानों को बचा सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हिमालय वनस्पति। देखिए जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह वन मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तापमान घटने और ऊंचाई बढ़ने के साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पहाड़ी ढालों और जो है प्राप्त सूर्य किरणों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। परिस्थिति तंत्र अत्यधिक जो है नाजुक होते हैं और हाल के दशकों में कई तरीकों से हिमालय के वनों का शोषण किया गया है। तो ये कहते हैं इंसान जितना आज तरक्की कर रहा है उतना ही प्राकृतिक का जो है दोहन भी कर रहा है। अपेक्षाकृत कम ऊंचाई 1000 मीटर तक जो है गर्म जलवायु और वर्षा की मात्रा इन क्षेत्रों में घने वनस्पति की विशेषता होती है। और देखा जाए तो ये वन उष्णकटिबंधीय वन की तरह ही लगते हैं। ये जो वन है उष्णकटिबंधीय वन की तरह ही लगते हैं और इन क्षेत्रों में साल और बांस मुख्य प्रजातियां हैं, यानी साल और बांस जो है इसके प्रमुख प्रजातियां हैं। और देखा जाए तो 100 से जो है 200 मीटर की ऊंचाई के बीच सदाबहार चौड़ी पत्तियां वाले इन वनों ओक और जो है चेस्टनट पाई वाली प्रजातियां हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पूर्वी हिमालय में एक ही ऊंचाई उष्णकटिबंधीय जो है पाइन वनों के लिए घिरा हुआ है और एक हिस्से में आमतौर पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय में अर्धशीतोष्ण वन जो है 1500 से लेके 3500 की ऊंचाई पर जो है 100 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में ये बेखूबी पाया जाता है। और इसमें ओक, आर्लेस, चेस्टनट, देवदार, सीडर और लिसिल्वर स्पूल एक प्रकार के फल आदि हिमालय पर पाया जाता है। यहाँ के वन व्यापक रूप से फर्नीचर के लिए शोषण किया जाता है, यानी फर्नीचर बनाने के लिए इन वनों का जो है बेखूबी दोहन किया जाता है। हिमालय पाई जाने वाली वनस्पति का अंतिम प्रकार जो है अल्पाइन वनस्पति है, जो बड़े और व्यापक जो है उच्च भूमि चरगाह और दूर दूर तक फैले पाइन, बर्च और सिल्वर, देवदार और एक प्रकार का फल जो पेड़ के साथ जो 3000 से के बीच जो है 3800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे मिलते हैं और इवन कि हमारे दैनिक जीवन में इन्हीं पेड़ पौधे का जो है दोहन किया जाता है, यानी लोग जो है व्यापार करने के लिए इन्हीं पेड़ पौधों का बखूबी उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहती है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे वन्य जीवन जो कि और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि तिरपान स्टडी सेंटर को जितना हो सके दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आप सहायता कर सकते हो। और इसलिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। जो बच्चे को समझ आएगा वो जरूर करेंगे, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिएगा। अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छा है कि तिरपान जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। सेव करते ही आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है जहाँ बहुत से वीडियो जो है आपके लिए है और यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए हर वीडियो उपलब्ध है। सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए और सेव करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए जो रेड दिख रहा है, दबाइए।